Dear students, today we will study something more about electromagnetic waves. First of all, come over facts about electromagnetic waves. First one is during propagation of electromagnetic waves, the direction of oscillation. हमने यह कहा है कि oscillation of electric field and magnetic field take place. Variation in values of electric field and magnetic field takes place. Then we used to say during propagation of electromagnetic waves, the direction of oscillation or variation of electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Right? यह जो होता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और यह जो दोनों का ऑसिलेशन है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करता है उसके भी उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है, which shows that electromagnetic waves are transverse in nature. Right? These waves do not require any material medium for propagation. इन सभी वेव को किसी मटेरियल मीडियम का नीड नहीं होता है. इट मीन दैट दीज वेव्स आर electromagnetic waves are non-mechanical waves. These waves travel in space with a speed of light which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. There is a relation between epsilon 0, mu 0 and a speed of electromagnetic waves, and that very speed is c square equal to 1 by mu 0 into epsilon 0, which can be written as c will be equal to 1 by a square root of mu 0 into epsilon 0. Right? The variation in electric and magnetic fields occur simultaneously, and the fields acquire their maximum values E0 and B0 at the same place and at the same time. अगर ग्राफ आपको याद पड़ रहा है पिछले वाले वीडियोस में तो देखिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो है तो करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू ज़ीरो है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू मैक्सिमम है. एंड वी यूज टू से वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अकर साइमल्टेनियसली. The variation in electric and magnetic field occurs simultaneously, and the fields acquire their maximum values E0 and B0 at the same place and at the same time. The energy of electromagnetic waves is divided on an average equally between electric field and magnetic field. जो एनर्जी का डिवीज़न होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ऑन एन एवरेज जो होगा दोनों को बराबर बराबर होगा. इसके लिए हम लोगों को एक एनर्जी डेंसिटी का एक रिलेशन पढ़ना था जो कि इस बार पोर्शन में खत्म हो गया है. Now come over electromagnetic spectrum. Question is this: what do you mean by electromagnetic spectrum? First come over spectrum. ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो याद कीजिए हम लोग लाइट में क्लास 8 में पढ़े थे कि when we put white light, when we put sun's light over a glass prism, then it breaks into 7 equal parts. Then it breaks into 7 equal part, and when we put here a white screen, then we get a band of 7 colors, then we get a band of 7 radiations, then we get a set of 7 colors. These set of 7 colors are known as a spectrum. हम लोग इस बात को पढ़े थे और नॉट
कि उसी जो 7 बैंड ऑफ कलर्स जो हमको मिलता है, 7 सेट्स ऑफ कलर जो मिलता है वाइट स्क्रीन पर, दैट वेरी 7 सेट्स ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। मीन्स स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट दैट इज बैंड ऑफ कलर्स, that is band of radiations, that is set of colors, set of radiations, right? So here in case of electromagnetic waves, the electromagnetic spectrum which we will get, that will consist of all electromagnetic waves, right? Electromagnetic spectrum consists of all electromagnetic waves which are arranged in decreasing order of frequency or decreasing order of energy or increasing order of wavelengths. Different electromagnetic waves are radio waves, microwaves, infrared radiations, visible light, ultraviolet radiations, X-rays and gamma rays. Now come over arrangement of different electromagnetic waves either in order of increasing frequency or increasing energy or decreasing wavelength, right? Then see this very diagram, different here names of different electromagnetic waves are given. See here, gamma rays, X-rays, ultraviolet radiations, visible light, infrared radiations, microwaves, और रेडियो वेव्स को कई पार्ट में बांट दिया गया है, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन रेडियो वेव्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, मीन्स यू कैन से दीज आर रेडियो वेव्स, राइट? तो अब जरा सा देखिए इन सभी रेडियो वेव्स को। सी हेयर फ्रीक्वेंसी इज रिटन, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है, मीन्स हेयर फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन दैट यहाँ पर सभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, और जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो उसका जो एनर्जी पोजीशन होगा दैट विल आल्सो डिक्रीज। उसके लिए आपने एक क्लास 10th में भी जो है 11th में केमिस्ट्री में भी एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, E इक्वल्स एच न्यू विच इज इक्वल टू hc by lambda. It means that if you have a wave of frequency nu, then energy possessed by that very wave will be equal to E into h nu, where h is Planck's constant. It means that when frequency will be more, energy will be also more. But E equal to h nu, which is equal to hc by lambda, what does it mean? E is inversely proportional to lambda, or hc by h nu equal to hc by lambda, h cancel कर देंगे, then we can write h will be proportional to again 1 by lambda. It means that when energy will be more, wavelength will be less, or when wavelength will be more, energy will be less. What does it mean? More energy, more frequency, less wavelength. Less energy, less frequency, more wavelength, right? Then see this very diagram, see this very spectrum. इस स्पेक्ट्रम को देखिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज किए गए हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ माइनस में है, मीन्स वेवलेंथ बहुत कम है, धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, एंड हेयर वेवलेंथ हैज बिकम 10⁻7 और 8. इट मीन दैट हेयर फ्रीक्वेंसी इज वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, राइट? Here frequency range, wavelength range, method of production, properties and uses of different electromagnetic waves are mentioned. अब हम लोग यह देखेंगे कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा हमने, उसका वेवलेंथ रेंज कहाँ है, क्या है, कहाँ से कहाँ तक वाले उस वेव के रेंज में आएंगे, मीन्स वो वाला पर्टिकुलर वेव होगा, गामा रेंज का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, गामा रेंज का वेवलेंथ रेंज क्या होगा, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका यूज़ क्या है. नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स
यहाँ से जो है अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें जनरली क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन ही आता है जनरली इस चैप्टर से। फर्स्ट कम ओवर गामा रेज, सबसे पहले गामा रेज के बारे में आइए। देन सी हियर वेवलेंथ ऑफ गामा रे इज, वेवलेंथ ऑफ गामा रे इज 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 10 meter, and frequency range is 3 into 10 to the power 22 to 10 to the power 18 हर्ज। फ्रीक्वेंसी मेरा बहुत कम है, वेवलेंथ मेरा बहुत कम है गामा का, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स गामा रे इज हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन। कैसे प्रोड्यूस होता है? देन बाय ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड डीके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अभी आप जो है हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, वहाँ पर आप पढ़ेंगे, या नहीं तो क्लास 11th में, या नहीं तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, हो सकता है 12th में भी जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पढ़ना था, वहाँ भी पढ़ चुके होंगे कि यह गामा रेज का जो प्रोडक्शन होता है जब जो है एक हायर, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है स्टेबल न्यूक्लियस बनने के दौरान जो है इस गामा रे का रेडिएशन इमिशन होता है, राइट। What are its properties? Then properties, chemical reactions on photographic plates। हम लोग रेडियो एक्टिविटी में ही देखते हैं कि यह फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर देता है, राइट। इट इज़ यूज्ड एज फ्लोरोसेंट मटेरियल, इट आयोनाइजेज मेनी मटेरियल्स, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, what is the use of this very gamma ray? Then we used to say it provides about a structure of atomic nuclei, means its use is in getting about information about a structure of atomic nuclei, right? Now come over X-ray। X-ray से जो है हम लोग देखे थे कि जो है एनर्जी मेरा डिक्रीज कर रहा था, मीन्स एक्सरे जो होगा गामा रे से कम एनर्जेटिक होगा, बट वेवलेंथ विल बी मोर। वेवलेंथ रेंज इज, इट्स वेवलेंथ रेंज इज 10 to the power minus 8, 11 to 10 to the power minus 8 मीटर। वेवलेंथ इज मीन्स वेवलेंथ मेरा बढ़ रहा है, राइट, बट एनर्जी इज डिक्रीजिंग, एनर्जी फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग, एनर्जी इज डिक्रीजिंग। Frequency range is 3 into 10 to the power 19 to 1 into 10 to the power 16 हर्ज, राइट। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाय सडन डीएसेलरेशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एट हायर एटॉमिक नंबर टारगेट एंड विद डिस्क्रीट वेवलेंस। They are also produced by electronic transition among the innermost orbits of atoms। यह एक्सरे एक पहले टॉपिक होता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब यह टॉपिक सिलेबस से हट गया है। What are its properties? All properties of gamma rays but less penetrating, means it possesses all properties of gamma rays, right? What is its use? Reveals the structure of inner atomic electron cell and crystal। यह जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने में यूज होता है, इनर एटॉमिक सेल्स जो होते हैं उसके स्टडी करने में यूजफुल होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस, राइट। कहते होंगे एक्सरे हमको कराना है, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा है, वही एक्सरे है। इट मीन दैट जिस पोजीशन का एक्सरे होता होगा उस पर एक्सरे इंसिडेंट कराया जाता होगा और उससे जो है वो इमेज वगैरह लेता है। दैट्स वाई इट इज़ गिवन हेयर दैट इट हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस, राइट। नेक्स्ट कम ओवर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का जो वेवलेंथ रहेगा वो दैट विल बी मोर देन गामा, बट एनर्जी विल बी लेस देन गामा, फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन गामा। Then see wavelength range is 1 into 10 to the power minus 8 to 4 into 10 to the power minus 7 meter, whereas frequency range is 3 into 10 to the power 16 to 8 into 10 to the power 14 hertz, right? Come over कि what is its use? इसका यूज़ क्या है? Then we used to say in detection of invisible writing। अगर जो है कुछ ऐसे पेन्स होते हैं, कुछ ऐसे यू कैन से इंक होते हैं जिसको कि लिख दिया जाएगा पेपर पर, तो आपको लगेगा नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है,
देन क्वेश्चन इज, बट लिखा होता है, देन क्वेश्चन इज इसकी हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट, देन बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वी कैन डिटेक्ट। तो इसका मतलब ये जासूसी में काम आता होगा, राइट। इट इज हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, झूठे डॉक्यूमेंट हैं, गलत डॉक्यूमेंट हैं, गलत सर्टिफिकेट्स हैं, अगर उसको चेक करना है देन अगेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज्ड इन फिंगरप्रिंटिंग एंड आल्सो इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड स्टफ, खाना को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक भी यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज़ किया जाता है। इट मीन दैट यू कैन से, याद रखिएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो है यू कैन से जासूसी वाले काम में जो है यूज़ होता है, राइट। नाउ कम ओवर विजिबल लाइट, जिसके बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इट्स वेवलेंथ रेंज इज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, राइट। ड्यू टू दिस वेरी लाइट वी आर एबल टू सी एनीथिंग, राइट। Then see here, wavelength range is given, frequency range is given, production यह कैसे प्रोड्यूस होता है, radiated by excited atom in gases and incandescent bodies। आ जाइए जरा से जो है इस विजिबल लाइट्स जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारा फिनोमेना विजिबल लाइट के ही चलते तो हम लोग स्टडी करते हैं। Now, what is its use? Then we use to say it reveals the structure of molecule and arrangement of electron in the external shell of atom, right? Now come over infrared radiations. Due to this very infrared radiation, anything hits up, right? Then see here, its wavelength range is given, इसका wavelength range दिया गया है, frequency range दिया गया है, right? frequency range दिया गया है। क्वेश्चन इज दिस की ये प्रोड्यूस कैसे होता है, then see here it is mentioned it is produced from hot bodies, यह hot bodies से प्रोड्यूस होता है, right? Come over uses in greenhouse to keep the plants warm, वैसे एरिया में जहाँ की हीट नहीं मिल पाता है, पौधे को जितनी गर्मी चाहिए बढ़ने के लिए, फ्लॉरिश करने के लिए नहीं मिल पाता है, वैसे रीजन में एक हाउस बनाए जाते हैं ग्रीन हाउस, और वहाँ पर हीट देने के लिए यही रेडिएशंस यूज़ किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन वारफेयर टू लुक थ्रो हैज़ फॉग एंड मिस्ट, जब लड़ाई चल रही होती है लाइट जला नहीं सकते हम लोग, तो देखने के लिए जो है कोहरा में देखने के लिए लाइट यूज होता है। और तो और आपने जो है डिस्कवरी चैनल और वो जो एनिमल वाला जो चैनल आता है उसमें देखते होंगे कि जो एनिमल का जो रात में फ़ोटो लिया जाता है दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड कैमराज, राइट। नेक्स्ट कम ओवर microwaves which is also known as short radio waves. See here, wavelength range is given, frequency range is given, question is this कि what is its use, इसका use क्या है, then it is used in radar, it is used in long distance wire communication, wireless communication, it is used in satellites, it is also used in microwave ovens, राइट। इसका मतलब ये रेडियो वेव का यूज़ जो है इन सभी जगह होता है। नेक्स्ट कम ओवर रेडियो वेव्स, जिसका कि फ्रीक्वेंसी और यू कैन से एनर्जी जो होता है, वेवलेंथ जो होता है मॉडरेट रेंज का होता है। एक तो कहा गया शॉर्ट रेडियो वेव, अभी यह मॉडरेट वाला है। वेवलेंथ रेंज इज मेंशन्ड, फ्रीक्वेंसी रेंज इज मेंशन्ड, कम ओवर यूजेज, इट इज़ यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विच रेडिएशन इज यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, राइट, ये पूछा गया है। उसके बाद जो है विच रेडियो इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, अगेन यह भी पूछा गया है। माइक्रोवेव, विच वेव इज यूज्ड इन ओवेंस, माइक्रोवेव ओवेंस, माइक्रोवेव यहाँ भी हो जाएगा। नाउ कम ओवर लॉन्ग वेव्स,
नो डाउट दीज आर आल्सो रेडियो वेव्स, जिसका कि वेवलेंथ अधिक है, राइट. वेवलेंथ रेंज इज गिवन, फ्रीक्वेंसी रेंज इज गिवन, राइट. नाउ सी these the radio frequency bands in electromagnetic waves used in telecommunication. मीन्स रेडियो वेव का ही जो है लॉन्ग वाला ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो है टेलीकम्युनिकेशन में देखिए यहाँ यूज दिखाया गया है, राइट. वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स, कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जो होता है जनरली डिफरेंट वेव्स का, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूजेज कहाँ कहाँ है, कभी कभी उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया गया है. जनरली यही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक जो है, या तो फ्रीक्वेंसी रेंज को इंक्रीज करने के लिए दे देगा, वेवलेंथ रेंज को के अकॉर्डिंग में अरेंज करने के लिए दे देगा, यूजेस पूछेगा. एक बार पूछा गया था कि सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, राइट. ओके.